Assalamu alaikum. I hope that you all can hear me and see the screen. Very warm welcome to everyone. My name is Afra Arshad and I'm the founder of Teen Therapy Wellness. Well, it's a platform where we provide the support to individuals who are dealing with mental health issues. Over the years, Teen Therapy Wellness has delivered impactful workshops in schools, in universities, and corporate sectors. And the main goal behind this initiative is to break the stigma around mental health and to equip the individuals with tools for emotional resilience. I am absolutely delighted to invite you in today's session of Opening Mind Mental Health Awareness series. It's going to be, I think, episode 8 now. Alhamdulillah, we have conducted 7 episodes and it has been a great success. Alhamdulillah, and I'm really, really thankful to each one of you. All right. So in this series, the Opening Mind series, we have around 29 powerful speakers, and they will be addressing real issues. They will be talking about real mental health issues that are not being shed light on. All right. Moving on. Right. So I'm the CEO and founder of Teen Therapy Wellness, and I initiated this platform, this organization back in 2019. And I think we have covered around more than 50 plus workshops and conducted around more than 100 one-on-one sessions with teen and young adolescents. And we address the issues like anxiety, depression, bipolar, self-harm, grief, and trauma, and I have around more than 7 years of experience in this field. And my focus is mostly on behavior interventions. All right, let's thank our sponsors as well, because without them, I don't think that we would have been able to, be here, come this far. So a huge thanks to our sponsors, Wellbeing Hub, We Protect You, and Amna Insari. Thank you so much for believing in us and for being part of our journey. All right, last but not the least, I would also like to invite, and it's my honor to introduce our speaker for today. That's Muhammad Sayyid Salim. And I hope that you are here with us right now. Today we are going to be talking about some real issues. He's going to be sharing his real story, as I believe those stories, they have the power to shift perspectives. And I don't think you can see such experiences in the notebooks or in the textbooks. So I think these workshops are very beneficial. You get to learn a lot and you get to talk to the person who has been going through some real mental health issues. All right, so today's session is going to be a very thought provoking. I want all of you to pay attention to it. And if you guys want to ask any question with him, I think he would be happy to cater it all. He's basically a student of clinical psychology and he's a founder of successful audit firm. And he has been living with DID and schizophrenia, dissociative identity disorder, and with schizophrenia. And so he's going to be talking about his journey today. He's going to be discussing the strength that it takes to live. And I believe that this is like, he has shown a lot of strength to be here with us. And we are incredibly honored. I hope that you're here, and assalamu alaikum, and over to you. Thank you, Ms. Afra. You can share your screen. Let me turn it off. All right. First of all, Assalamu alaikum. I would like to introduce myself. My name is Muhammad Salim. I am 21 years old and I am postgraduated from Edinburgh Napier University, UK, in accounting and finance. I have two firms of taxation and audit. I was I was diagnosed by schizophrenia in 2019, and these all slides are about schizophrenia and DID. So let me start.
So, first of all, I would like to tell you that I am pursuing BS Clinical Psychology at UMT Lahore. I am a just first year student. It's my second semester at there. So, what is schizophrenia? Schizophrenia involves disconnection from reality. The basic definition of schizophrenia is that it breaks the disconnection from your perspective to reality. You see, you you it include hallucinations and Are you there? We cannot hear you. I think he's facing some connectivity issues. Just give him some time. I think his internet is showing some issues. Meanwhile, I would like to hear something up from you guys as well. According to you guys, what do you know about schizophrenia? Anyone would like to share something? Anyone who would have worked with the schizophrenic patient, कोई अपना कोई therapist अगर हमारे पास है तो वो कोई अपना experience share करना चाहेगा. जी, Sabah Salim, you want to say something? जी सबा. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम. जो मैंने पहले मतलब शिज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड सुना है वो यही है कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो कि एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर और इमोशंस को है बैडली इफेक्ट करता है। True. इसमें ये है कि हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच आ जाती है। एबनॉर्मल हमारा बिहेवियर होता है सोसाइटी के लोगों के साथ। इवन के शिज़ोफ्रेनिया समटाइम्स लीड्स टू सुसाइड and many people in our society will do suicide did suicide due to schizophrenia,
और इसकी जो काजेज होती हैं बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स जो है कम्बिनेशन होता है हमारे जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स का। समटाइम्स हमारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये जो है ये हमारी सोसाइटी के साथ जो है वो भी काफी लिंक है। कि समटाइम्स जो सोसाइटल प्रेशर होता है, हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनकी वजह से भी समटाइम्स शिज़ोफ्रेनिया होता है। और मोस्टली जो अपकमिंग डाटा है उसमें हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये जो मेल चाइल्ड विक्टिम होता है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी में एक तो जो है शिज़ोफ्रेनिया, दूसरा उसके साथ साथ जो है कि लोगों को कोई सेंस नहीं रही है। हम कहते हैं कि एजुकेशन है जी हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एजुकेशन इनके पास है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अकल नहीं है पाकिस्तान में। आई वुड रियली कमेंड कि अगर कोई पाकिस्तानी हो तो उसमें एटलीस्ट कोई ना कोई सेंस हो। Very true, very true. Thank you so much for sharing that. बस यही है कि we need to have more conversation about it. We need to educate our people. We need to tell them that this is a real issue. And someone has said in the chat box, I would like to share that many times they mistake it for jinn के असरात हैं. And I have someone in my family who is suffering, and they said इन पर जिन के असरात हैं, and they took her for many alma, but nobody could tell what is it. But then after a long time they took her to a psychiatrist. Very true. जो भी clients इस तरह के symptoms के साथ इसमें आते हैं, साइकेट्रिक वार्ड में आते हैं, उनकी हिस्ट्री में ये लाजमी होता है कि वो पहले बाबा पीर बाबा से दम वगैरह करवा कर ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनको पहले यही होता है कि जिनके असरात हैं पहले वहां से हम तसल्ली करवा लें, देन दे विल कम टू सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। ये बड़ा एक सैड रियलिटी है, बट वी आर पार्ट ऑफ इट। आई थिंक तस्नीम निसार आल्सो वांट्स टू से समथिंग। जी प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो डॉक्टर आई जस्ट वांट टू से कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है क्या वो टेंशन की वजह से भी हो सकता है? बिकॉज़ मुझे जो है डिप्रेशन है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ से इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। और इससे पहले जिस तरह अभी एक किसी ने यहाँ पे स्टोरी शेयर की कि उन्हें भी जिन्नात वगैरह जो हैं इस तरह की चीज़ें एबनॉर्मल चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई और काफ़ी लंबा अरसा मुझे लगता है मैंने भी इस चीज़ से सफ़र किया। एंड मेरा जो बड़ा भाई है वो है मेडिकल में है, तो वो मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड करते थे कि ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद मैं डिप्रेशन से मुझे जो है मैं डायग्नोज़ किया गया मुझे, और स्टिल मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन आपस में इंटर रिलेटेड है? क्योंकि ये दोनों ही मेंटल हेल्थ कंडीशंस है। ठीक है। अच्छा, सिज़ोफ्रेनिया का डायरेक्ट लिंक नहीं होता डिप्रेशन या स्ट्रेस के साथ, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। बट हाँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया या बहुत कुछ सिवियर ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया, तो वो बेसिकली इंक्रीज कर सकता है आपके साइकोसिस को। ठीक है, सिवियर स्ट्रेस है या सिवियर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो दैट कैन लीड टू साइकोसिस, बट कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। एंड साइकोसिस इज डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, और ये को अकरिंग भी होते हैं, लेकिन वो यही होता है कि जो सिज़ोफ्रेनिया है वो सिवियर कंडीशंस में जाकर होता है। अगर आपका कोई माइनर स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस है, जो भी टाइम ठीक हो गया है, तो आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकती हैं, बट वो जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता रहता है, फिर डिल्यूजन्स भी आपकी ठीक होती रहती है। I hope I have answered the question. Ji, Bahajat Noor have also raised her hand. Please go ahead. Assalamu alaikum, everyone. My name is Bahajat Noor. It is actually I really wanted to appreciate you, Ms. Afra, for this initiative. It's a very good initiative. I joined 1 or 2 previous sessions as well. Actually, when you said कि अपना कोई experience share करें, actually मेरा अपना schizophrenia के negative symptom dominant के एक patient के साथ experience रहा. She's a female and she has the history of
उसका एक्टिव फेज जो है शिजोफ्रेनिया का वो हो चुका था पहले, काफी लाइक 5-6 साल पहले, और वो अपने रेजिडुअल सिम्टम्स के साथ आई थी, शदीद डिप्रेशन के अंदर वो आई, ठीक है, और हमने उसको ट्रीट किया। मेनली उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स थे मैं उनको शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जैसे कि उसके मेन दो तीन सिम्टम्स थे, वो कमरे में अकेली बैठी रहती थी और पंखा बंद करके गर्मी में बैठी रहती थी, और उसकी हाइजीन कंप्लीटली बहुत ज्यादा पुअर थी, एंड शी यूज्ड टू हैव दैट वर्ड सैलेड काइंड ऑफ स्पीच। उसकी बातों में मुझे आज भी एक याद है, शी यूज्ड टू से कि अंडा पहले आता है कि मुर्गी पहले आती है। शी यूज्ड टू से मी दिस, एंड देन अदर देन दैट उसका बहुत एक रिलीजियस काइंड ऑफ जो है ना एक्ट था, वो बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, एक ये चीज भी उसमें आई। और आई वॉज हैप्पी टू वर्क विद हर, मैंने उसकी हाइजीन पे वर्क किया, और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हुई, उसके हस्बैंड जो थे उसके साथ उसकी रिलेशन बहुत ज्यादा, लाइक ऑल द नेगेटिव सिम्टम्स टू सम एक्सटेंट वाज प्रेजेंट, लाइक एनहेडोनिया वाज देयर, एलोगिया वाज देयर, and asociality was also there. So it was a good experience working with her. Actually सर्विसेज हॉस्पिटल में वो आई थी और तकरीबन 2 माह उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और शी यूज टू सेड बहुत सी दुआएं देना, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, एंड आई थिंक दुआएं लगती भी हैं पेशेंट्स की, और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट आई बिलीव शिजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो बगैर मेडिसिन के नहीं हो सकता। मेडिसिन विल गो अलोंग विद द थेरेपी, एंड थेरेपी में भी हम जो है वो सीबीटी की मेन टेक्निक्स तो यूज नहीं कर सकते, हम उनके डिल्यूजन्स को तो टारगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली ना, हम बेसिकली सिम्टोमेटिकली जो उनको बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सो दैट वो कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में दोबारा कम बैक कर सके। So that's what my experience was with the patient of schizophrenia with more negative symptoms, और उसको दोबारा से मेन स्ट्रीम लेकर आना, फुली तो नहीं रिकवर कर पाते बट या टू सम एक्सटेंट। और मैं अगर कम्युनिटी को बताना चाहूँगी, हम इसके लिए प्लान्स यूज करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्केल हम यूज करते हैं, थेरेपी में हम एक कंबाइंड अप्रोच यूज करते हैं, सीबीटी की और डीबीटी की कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए। And that's all from my side. Still, I need to work with the patient with active phase, जिसमें hallucinations और delusions होते हैं. So that's all from my side. I really wanted to share कि I did work with such kind of person जो कि काफी taboo समझा जाता है इन लोगों के बारे में. I know that, और मुश्किल है काम करना, fully इनको जो है treat करना. I think it's not that possible, but yes, we can try to help them if they are in a very severe condition with the help of both therapists and psychiatrists. Thank you so much. That's all. Thank you so much for sharing your insight with us. Yes, आपने बहुत अच्छा point raise किया कि medications are very important when you have to deal with schizophrenia. I believe कि जो medicines होती हैं definitely they are not the cure, but I think वो आपको symptoms को manage करने में बहुत ज़्यादा help करता है. It's same like कि अगर कोई ऐसा patient है जिसको diabetes है तो हम उसको insulin लगाते हैं, ठीक है, या कोई asthmatic patient है तो उसको inhaler की ज़रूरत होती है. तो inhaler is not the cure for asthma, but it can help you to manage the symptoms. तो यहाँ पे medications और therapy दोनों चीज़ें साथ साथ ही लेकर चलती हैं. I would want to ask Zaid Salim once is back with us कि वो कौन सी medicines ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं और किस तरह से उनका treatment चल रहा है. When once is back तो फिर इंशाल्लाह we'll ask him. All right. Tasneem has, I think Tasneem का तो हो गया. Ansa Kamal has raised her hand. Please, Ansa, go ahead. मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम अस्सलाम। एक बार अगर ये ट्रीट हो जाए कम्प्लीटली तो फर्स्ट तो ये कि क्या ये कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं इस डिसऑर्डर को, और अगर एक बार ये ट्रीट हो जाए मतलब वो पेशेंट ट्रीट हो जाए दोबारा से वापस आ सकता है ये उस पेशेंट पे? सिजोफ्रेनिया का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है ये हो जाता है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो बड़ी देर तक आपके साथ रहते हैं, और सिंस इसमें मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं. कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेडिसिन की वजह से आ रहे हैं.
आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उन मेडिसिन के बगैर, और जब आप मेडिसिन को छोड़ना स्टार्ट करते हैं तब आपके विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तब आपको ज़्यादा नीड होती है जस्ट फॉर द मेडिकेशंस। एंड येस, इट कैन बी क्योर कम्प्लीटली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं विद दीज सिम्टम्स, एंड लॉन्ग टर्म इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत रेयर है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम ठीक होने लग गए हैं तो वी लीव द ट्रीटमेंट। हम कहते हैं नहीं, 2 दिन हो गए, कोई डिल्यूशन नहीं हुई, कोई हेलुसिनेशन नहीं हुई, कोई इस तरह का फीलिंग नहीं आई, तो अब हम इसको छोड़ना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे मुल्क में या हमारे लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे इसको लगता है ना कि हम थोड़ा सा हमारे सिम्टम्स ही मैनेज होना स्टार्ट हो गए, तो वो ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। हमने सिर्फ हमारा जब थेरेपी में खास तौर पे, क्योंकि ये मेडिसिन के बगैर नहीं होता, व्हेन वी डील विद दीज पेशेंट्स, तो हमारी कोशिश, हम उनको बता देते हैं शुरू में ही कि शायद हम इसको परमानेंटली क्योर ना कर पाए, बट इसके सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेबल लाइफ जी रहे हैं विद सिजोफ्रेनिया, एंड मोहम्मद Zaid Salim is actually one of them who is living with schizophrenia, and he's taking therapy, he's taking support, he's taking medications, but he still have the symptoms. ठीक है, दे जो स्ट्रेस अगर आ रहे हैं ना ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो वो डेफिनेटली आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा। तो आई थिंक इसमें ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, कभी कभार यू फील गुड, समटाइम्स दे कम बैक। रिलैप्स प्रिवेंशन, रिलैप्स ही बहुत ज़्यादा होता है इसमें कि आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, एंड देन अगेन समथिंग ट्रिगर्स यू एंड देन इट कम्स बैक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट नो वेयर इज ही, वेयर इज Zaid Salim, but I just wish he could join us and we can, have more conversation about it with him. All right, moving on to Iram Shehzadi. Would you like to say something, Iram? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी एक किसी ने शेयर किया, पूछा बल्कि कि डिप्रेशन और जो स्किज़ोफ्रेनिया है, और मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक सो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो ये एक डिफरेंट है। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई कनेक्शन डिप्रेशन से है। जब डिप्रेशन अगर एक लॉन्ग अरसे तक रहे तो वो पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाते, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ना कि बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया में। बिल्कुल सही। और यस, और सेकेंडली ये कि व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में हम जाते होते थे क्लिनिकल के लिए, तो वहाँ पे एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, और वो सीवियर कंडीशन थी उसमें। मतलब कि जो हमारी साइकोथेरेपी होती है वो भी बहुत कम इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशन होती है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, वो सुनना ही नहीं चाह रहे होते मोस्टली क्लाइंट्स। तो उसमें ये होता है कि वो मेडिकेशन के थ्रू पहले उनको थोड़ा स्टेबल किया जाता है, और देन उन पे जो है ना थेरेपी अप्लाई की जाती है, और वो उसमें भी आप श्योर नहीं होते कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। तो उस पेशेंट की कंडीशन ये थी कि वो मतलब डिस्चार्ज हो जाता था, और उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद अगेन वो एडमिट हो जाता था, फिर डिस्चार्ज होता था अगेन। और उसमें मतलब एक ही चीज जो उसके माइंड में एक चीज उसको ट्रिगर कर रही थी, वो हर जब जब भी वो एडमिट होता था तो उसको वही चीज ही वो अगेन उसी चीज के साथ दोबारा आता था। मतलब कि ऐसे होता था कि जैसे उस पे ना मेडिकेशन का असर हो रहा है और ना ही किसी थेरेपी का। तो वो जब जब भी हम जाते थे वो पेशेंट हमें उसी कंडीशन में मिलता था। मतलब ये कि इट्स डिपेंड ऑन द सिम्टम्स एंड इट्स डिपेंड ऑन द सिवियरिटी के एक आपका स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो कितने सिम्टम्स हैं उसमें, और उसका लेवल क्या है कि आया वो माइल्ड में है, मॉडरेट है, या मॉडरेट टू सीवियर है। अगर सीवियर केसेस की बात करें तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके ना, उसमें लॉन्ग टर्म और बहुत अरसे तक सिम्टम्स रहते हैं। अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट की बात करें या उसमें 1 या 2 सिम्टम्स है तो वो कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। किसी ने ग्रुप में मैसेज पूछा हुआ है, अंसा ने, कि कैन देयर आल्सो बी पैनिक अटैक्स एंड सेल्फ हार्म इन इट? Yes, people with schizophrenia, they do experience panic attack and self harm, even though schizophrenia के ये core symptoms नहीं होते हैं, but साथ साथ ये आ जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग
hallucinations, you do feel extreme fear, या आपको एकदम से डर लग जाता है, या कोई आवाज़ आपको सुनाई दे, या कोई आपको नज़र आए इस तरह से, तो you do start feeling आप पैनिक अटैक आपको आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपकी मे बी हार्ट बीट तेज हो जाए, चेस्ट टाइटनेस हो, ठीक है, स्वेटिंग शुरू हो जाए, एकदम से सांस खराब हो जाए, तो पैनिक अटैक भी होता है और सेल्फ हार्म भी है in those individuals, because sometimes क्या होता है, क्योंकि ये schizophrenia के साथ डिप्रेशन या ट्रॉमा इट्स को occurring with them, ठीक है, एंड सेल्फ हार्म इज डेफिनेटली नॉट ऑलवेज सुसाइडल, बट इट इज स्टिल सीरियस। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया के साथ आते हैं और वो ये कहते हैं कि वी डू सेल्फ हार्म, एंड सेल्फ हार्म को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, बिकॉज सिजोफ्रेनिया को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट नहीं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि सेल्फ हार्म अगर कोई कर रहा है, जैसे आपने बताया कि आपके सिस्टर को है, मेडिकेशन चल रही है, तो उसके सेल्फ हार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे पॉसिबिलिटी कि उसको नाउमीदी हो रही हो, या वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस की वजह से ओवरवेल्म फील कर रही हो, and in order to reduce hallucinations, in order to silence the voices that she is hearing, she might start hurting herself. तो डेफिनेटली उनको आई होप मेडिकेशन के साथ साथ उनकी थेरेपी भी चल रही हो, और फैमिली और सोशल सपोर्ट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऑलराइट, किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ था, लेट मी सी। जी, शाकिर मंजूर खान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। Assalamu alaikum, Afra. First of all, I really appreciate the work which you are doing. In fact, this is my first time के इस तरह के ऑनलाइन सेशंस में मैं अटेंड किया है प्रोग्राम। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दो तीन मेरी कीन ऑब्जर्वेशंस हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें मोर ऑफ लाइक पीपल who are dealing, either they are psychiatrists or psychologists, yeah, they are dealing with the people with mental disorders. मेरा ताल्लुक जो है it's a bit different. I'm dealing with people who are living with type 1 or type 2 diabetes. अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जो चैलेंज आता है, सिंस आई एम वर्किंग विद द एडुकेसी या इवन उसमें जो केसेस हम लोगों को डील करने पड़ते हैं, they are the first stages of anxiety depression, because उसमें they feel like stigmatization of the disease, या silos में रहने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर जो टीन एज में होती है टाइप 1 डायबिटीज, उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होती हैं। तो आप लोगों की जो डिस्कशंस वगैरह हैं, इट इज काइंड ऑफ मोर ऑफ एडवांस काइंड ऑफ थिंग्स, या जो भी अभी कुछ दोस्त या मेरी बहनें क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रही हैं पेशेंट्स वगैरह का, आई वुड रिक्वेस्ट इसको थोड़ा सा लाइटर मोड में रखें, ताकि हमारे जो जैसे जो सादे बंदे हैं हु डोंट नो मच अबाउट साइकोलॉजी बट दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, वो हमें भी फिर हेल्प आउट करेगी, क्योंकि जो दूसरी कोमॉर्बिड डिजीजेस हैं उसमें फिर हमें भी हेल्प आउट हो जाएगा कि उनको किस तरह से रेफर किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर those cases should be referred toward you. Thank you. Thank you so much for being part of our journey, and thank you so much for sharing your insight. Definitely, we are going to keep it to layman language. ठीक है, हम इसको ज़्यादा एडवांस में नहीं डिस्कस करेंगे. It was just a normal discussion, and congratulations because he's back now. So yes, Salim is back. He's going to join the screen, share the screen, and he's going to take over. Please welcome back.
Would you like me to share your presentation? मेरे पास हैं आपकी slides. If you want me to do that, I can do it for you. Miss Afra, I will be very happy if you share my slides. जी जी, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करती हूँ. Assalamu alaikum. First of all, very sorry for the delay. My name is Mohammed Zaid Salim, and I'm a postgraduate in accounting and finance. So, leaving behind this, all of this, I would like to take this further. First of all, I would like to tell what is schizophrenia. I'm so sorry for cutting you off. I just want to add, if possible, please try to stick to simple language so that it's easier to grasp for each one of us. Okay? Okay. Because there are a lot of people who are not from psychology background, but they still want to know about the mental health. So I think it's better if we just keep it as a, we'll avoid complex terms and explain things in plain language. Okay, ma'am. Okay. Schizophrenia. तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया कट ऑफ फ्रॉम कट ऑफ योर डेली लाइफ एंड स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्शन कर जाते हैं और आपको चीजें दिखाई देती हैं जो कि रियल नहीं होती. इनफैक्ट वो हेलुसिनेशन या डिल्यूजन कहलाए जाते हैं जो आपकी एबिलिटी पे असर करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए. तो मैं स्किज़ोफ्रेनिया और डीआईडी बहुत दोनों का पेशेंट हूँ. 2019 में मैं स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज हुआ था फ्रॉम लाहौर से ही हुआ था. फर्दर ऑन मैं यूएस चला गया था ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि 2019 में पाकिस्तान में इतनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी और कोविड-19 का भी पेंडेमिक था. तो मैं यूएस जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल्स में चला गया था ट्रीटमेंट के लिए. तो मुझे स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होते थे. मुझे ऐसे लगता था मुझे डायनासोर्स वगैरह नजर आते थे, मुझे परिंदे नजर आते थे और मुझे ऐसे लगता था कि मैं जंगल में हूँ और मेरे नीचे से मैं पानी में तैर रहा हूँ और मैं पानी में डूबने वाला हूँ. तो ये मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता था. मैं जब पानी में जैसा कि मैंने कहा कि मैं पानी में डूब रहा होता था तो मैं साथ में एक्शंस भी कर रहा होता था. मैं पानी में तैरने की कोशिश भी कर रहा होता था. तो जिसकी वजह से मेरी फैमिली को पता चला कि देयर समथिंग रॉन्ग विद माय माइंड. तो सेकेंडली डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग. आपकी थिंकिंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है.
आप बातों में कट ऑफ कर जाते हैं। आप मुझे भी आपने अभी मुझे भी नोट किया होगा कि मैं बातों में थोड़ा सा डिले ला रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमें हर चीज लिखनी पड़ती है, हर चीज प्लान करनी पड़ती है। कोई भी कन्वर्सेशन होती है तो हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। इवन इट इज सिंपल, कोई भी सिंपल बात करनी हो ना तो हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इससे ये होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है इसमें लैप्सेस आ जाते हैं। मुराद के हमें याद नहीं रहता कि कब क्या हुआ था, और हमारे जो फंक्शंस हैं इसमें भी बहुत ज्यादा डिले आ जाता है। कभी कभी हम प्लानिंग कर ही नहीं पाते, कभी कभी हम कोई प्रोग्राम बना ही नहीं पाते, जस्ट बिकॉज जो हमारा ब्रेन होता है वो चीजों को ब्लॉक कर रहा होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का हमारी जो डेली लाइफ है इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैम, कुड यू प्लीज शेयर नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। तो हम लोगों से बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाते हैं। हम अगर बाहर निकलेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग हमें पागल कहते हैं, लोग हमें पागल खाने अक्सर छोड़ भी आते हैं। कोई लोग जो एंटी सोशल हैं वो पकड़ के छोड़ भी आते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं जिन्ना जो मेंटल वार्ड है वहाँ काफी मरतबा आई डोंट नो कैसे पहुंच गया। तो जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे लोगों ने ही छोड़ा होगा शायद। तो हम बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो स्पीच है, हमारी स्पीच स्लरी हो जाती है। हमें सही से जो अल्फाज हैं वो बोलना नहीं आते। इमोशनल रेगुलेशन, तो इसमें ये होता है कि हम कभी कभी बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने अपने फादर से बर्गर की डिमांड की और उन्होंने मुझे नहीं ला के दिया, मैं रोना शुरू हो जाऊंगा कभी कभी। और कभी कभी अगर मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी तो देयर विल बी नो इमोशन ऑन माय फेस। मैं इतना पत्थर दिल हो जाऊंगा कि मेरे मुंह से कोई एक आंसू नहीं निकलेगा। तो ये एंजाइटी वगैरह की तरफ ले जाती है ये चीजें, और डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं चीजें। मेंटेनिंग रूटीन, स्किज़ोफ्रेनिया से आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं 2020 में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में ही था, मैं 6 माह तक कपड़े नहीं बदलता था, मैं 2-3 माह तक नहाता नहीं था, मेरी हाइजीन बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, मुझे पानी से डर लगना शुरू हो गया था। तो रूटीन के आम जिंदगी के जितने भी मसले होते हैं इनको प्लान करना और इनको अप टू डेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हमारा ब्रेन, अगर मैं नहाने का प्लान बनाता भी हूँ तो हमारा ब्रेन हमें किसी और तरफ ले जाता है। या अगर मैं नहा भी रहा होता हूँ तो मुझे नहाने के दौरान तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी, या वो डायनासोर, वो वुल्फ, वो जंगल सारा बन जाएगा, तो मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से कट ऑफ होना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी रूटीन भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। मैम, कैन यू प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप नहीं होते, आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। जैसा कि मैं हूँ, मेरे अलावा मेरी 2 पर्सनैलिटीज और हैं, जो कि एक क्रिश्चियन है और एक बुद्धिस्ट है। तो वो आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन, इसमें ये होता है कि हम उनको आल्टर्स बुलाते हैं। उनका नाम एक
प्राइमरी ऑल्टर जो पहला होता है उसको प्राइमरी ऑल्टर कहते हैं, और जो सेकंड ऑल्टर होता है उसको सेकेंडरी ऑल्टर कहते हैं। तो होता ये है कि जब वो ऑल्टर्स आते हैं, मेमोरी गैप्स, तब जब वो ऑल्टर्स आते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में गैप आ जाता है और हमें वो गुजरा वक्त याद नहीं रहता। अब मेरा जो प्राइमरी ऑल्टर है उसका नाम निर्वाणा रोड्रिगीज है। वो एक क्रिश्चियन है, वो बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ता है, वो चर्च भी जाता है ऑफ कोर्स, और वो उसको ड्राइविंग भी आती है। हालांकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती लेकिन उसको ड्राइविंग आती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मैं एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा बचा हूँ कि वो गाड़ी चला रहा होता है और सडनली शिफ्ट होती है पर्सनैलिटी, मैं आ जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं होता करना क्या है, और वो मैं गाड़ी में होता हूँ। तो मुझे बाइक चलानी आती है, मैं बाइक चला रहा होता हूँ, सडनली मूड स्विंग होता है, कोई रोड पे ऐसी चीज देख ली जिससे वो आ जाता है, तो वो मैं बाइक से नीचे गिर जाता हूँ। रिसेंटली मैं बाइक से नीचे गिरा और मैंने अपनी हड्डी टूटवा ली, मुझे राइट टिबिया फ्रैक्चर हो गया। तो इससे एक इमोशनल स्कार हमारी जिंदगी में रह जाता है, और दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सम केसेस सेल्फ हार्म टू। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन तो नहीं होती, लेकिन थेरेपीज होती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा थेरेपीज ली हैं। तो अभी भी मैं एक हफ्ते में 4 मरतबा थेरेपी लेता हूँ। 2 जूनियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं और 2 साइकियाट्रिस्ट होते हैं। आल तो साइकियाट्रिस्ट इतनी ज़्यादा थेरेपी नहीं देते, लेकिन वो उनके पास मुझे जाना पड़ता है, अप टू द मार्क, अप टू डेट रहना पड़ता है अपनी कंडीशन के हवाले से। मैम, कैन यू प्लीज मूव अप टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जस्ट अ सेकेंड, मैं कर रही हूँ। ओके, तो DID का हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं जो कि मुझे अकेले रहना पसंद है, जो ही मेरा ओल्डर आएगा, निर्वाणा आएगा, मैं बाहर निकलना शुरू हो जाऊंगा। मैं बाहर दोस्त बनाऊंगा जाके, वो लोग जो मुझे जानते नहीं मैं उनके साथ दोस्ती करूंगा, मैं उनके साथ सोशलाइजेशन करूंगा। तो मेरे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं कभी अकेला रहता हूँ बहुत ज्यादा, तो कभी मैं बाहर दोस्त बनाने निकल जाता हूँ या बाहर वॉक पे निकल जाता हूँ। तो उन्होंने मेरे पे ना एक GPS ट्रैकर लगाया हुआ है, एप्पल वॉच है, जिसकी वजह से वो मुझे कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं कि मैं अभी भी अपने कमरे में हूँ या नहीं। अभी भी मैं अपने कमरे में हूँ, मैंने लॉक किया हुआ है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे कमरे में आए। लेकिन जो ही मेरी पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं अपने सिबलिंग के साथ बातें करूंगा, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये बॉन्ड उनका मेरी ऑल्टर्स के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। कभी कभी मेरे पेरेंट्स को भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ बातें करता हूँ, जो मेरा ऑल्टर है वो बातें करता है, तो उनका मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन फर्स्टली शुरू शुरू में मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं ये अपने से बना रहा हूँ ये जो ऑल्टर्स हैं। लेकिन बाद में जब उनको एक प्रॉपर असेसमेंट से पता चला कि मुझे DID भी है, तो उन्होंने इसके साथ कोप करना शुरू कर दिया। मैम, कैन यू प्लीज मूव अप टू नेक्स्ट स्लाइड।
Just a minute. जिन जिनको slides का issue आ रहा है, I think net अपना like maybe make sure that you have a stable internet because यहाँ पे the slides are visible all the time. Okay. Thank you. ऑल्टर्ड रियलिटी परसेप्शन, दोनों ही जो ये बीमारियां हैं, इन दोनों से हम जिस तरह दुनिया को देखते हैं, हमारा दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज रियल है और क्या चीज नहीं है। सोशल एंड रिलेशन हर्डल्स, ये वही बात आ जाती है कि हमें डिफिकल्टी होती है एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में और उसको कायम रखने में। हम दोस्तों के साथ मतलब बाहर नहीं जा सकते, सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, बाहर प्लान बना के कहीं खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हमें लोगों से बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। कभी कभी अभी भी अगर मैं बाहर जाऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लोगों के सर ही नहीं है, वो लोग बगैर सर के चल फिर रहे हैं और बहुत इवल काइंड महसूस होता है। इसके बाद कोग्निटिव डिफिकल्टीज आ जाती हैं। ये वही चीज है कि हमारी मेमोरी में एक ओवरलैप आ जाता है। हमें वो अगर मेरे ओल्टर ने 8 घंटे बिताए तो मुझे याद नहीं होगा कि उन 8 घंटों में क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ओल्टर से बात करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि तुमने जो कुछ किया है, तुम जर्नलिंग उसकी कर लो। तुमने अगर कोई मैस क्रिएट किया है, तुम एक जगह लिख लो। अगर तुमने कोई चीज अच्छी की है, एक जगह लिख लो। अगर तुमने मेरे पैसे लगाए हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं, तो वो एक जगह लिख लो ताकि मुझे पता चल जाए, मैं चीजों को ट्रैकिंग कर सकूं कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, मैंने क्या किया है। अगर तुमने कोई मैस क्रिएट किया है, एक बार इसने मेरे ऊपर FIR करवा दी थी, तो मुझे मजिस्ट्रेट को जाके ये चीज समझानी पड़ी थी कि वो मैं नहीं था, वो मेरा एक प्राइमरी होल्डर था। लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट ने मेरे ऊपर एक लीगल केस कर दिया था, जिससे मेरे फादर को फाइन देना पड़ गया था 3 लाख का। तो बहुत ज्यादा डेली फंक्शन में हमें मसला होता है। हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर कि वो हमें लेके चलें, वो हमारा ख्याल रखें एक छोटे बच्चे की तरह। मैं अपने से 100% देता हूँ कि जो हो सकता है कि वो मैं करता हूँ। तो लेकिन हमें फिर भी एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि पावर सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि हमें अगर कोई भी मसला होता है तो वो हमें उसमें बचा के रखे और उसमें गाइड करे। मैम, कैन यू प्लीज मूव अप टू नेक्स्ट स्लाइड। द पावर ऑफ सपोर्ट, यही बात आ गई। इसमें CBT है और थेरेपीज है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें ये होता है कि हमें चीज़ों को लिखना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी रेटिंग, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 10 में से 9 है, 8 है। जर्नलिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, पर्सन ओरिएंटेड थेरेपी होती है। उसमें आप खुद ही होते हैं, आपके आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे आप डरते हैं और आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी, सॉरी उसका नाम है। तो उसमें आप कैसे सरवाइव करते हैं वो आप देखा जाता है। तो ये इस तरह की डिफरेंट थेरेपीज हैं जो DID में काम आती हैं। ऑल्दो DID के लिए कोई अभी कोई FDA अप्रूव मेडिसिन नहीं आई जो कि DID के जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सके। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया को मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकता है। सिम्टम्स काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, स्लीपिंग पिल्स होती हैं। अगर मैं आपको अपनी बताऊं,
मैं एक दिन में 22 पिल्स लेता हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट 11 ईच, जिसमें 4 स्लीपिंग पिल्स हैं, बाकी एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि आपको वो सुलाते बहुत ज्यादा हैं। बैक 2020 में 2021 में 20 घंटे सोता था, 4 घंटे उठ के थेरेपी लेता था, फिर सो जाता था। अब मैं 14 घंटे सोता हूँ और 9 to 10 आवर्स मैं अपना काम करता हूँ, जो मेरी फार्म है। ऑफ कोर्स उसमें जो काम होता है उसमें अपने आप को बिजी रखता हूँ। स्पोर्ट नेटवर्क, अभी एक स्पोर्ट नेटवर्क मेरा वर्चुअली है अमेरिका के साथ ही, जो कि हमें ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। एक वीआर बॉक्स हमें डेडिकेटेड दिया हुआ है, जिससे हम उस ग्रुप थेरेपी में पाकिस्तान से वहाँ होते हैं। Moving on to the last slide, ma'am, can you please key takeaways? Empathy is the key. हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो एम्पैथी दिखाते हैं और हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स मैं काफी ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जो कि मुझे कहते हैं कि तुम बाहर कम निकला करो, तुम्हारे साथ गलत है, कुछ गलत हो रहा है, बाहर मत निकला करो। बाहर क्या नाम है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा ऐसे रिस्क हैं, तुम्हारी लाइफ रिस्क है। तो इसके बाद स्पोर्ट एम्पावर्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि स्पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हमें स्पोर्ट नहीं होती तो हम लास्ट सॉल्यूशन एक होता है सुसाइड, उसकी तरफ ही जाते हैं। 2021 में जब हमें कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, मेरी कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं आती थी, मैंने 3 मरतबा सुसाइड अटेम्प्ट की। मुझे इसमें कहने में कोई मतलब शर्म नहीं आती, मैंने की। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया और मैं अपनी जिंदगी अभी जी रहा हूँ। और मैं इसको एडवोकेट करता हूँ कि पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया और जो डीआईडी हैं, इनकी रेशियो बहुत कम है। 5% दुनिया में दुनिया की जनरल पॉपुलेशन देखें तो उसमें 5% ऐसे लोग हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और 0.5% ऐसे लोग हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया और डीआईडी बोथ है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई केस लाइट में नहीं आया जिसमें किसी को स्किज़ोफ्रेनिया और डीआईडी बोथ हैं। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और डीआईडी बोथ दोनों हैं, मैं लाइट में नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट और स्ट्रगल के साथ मैंने मैन के साथ बात की और मैंने कहा कि एडवोकेसी मैटर्स। और मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी एडवोकेसी एजेंसीज हैं, जैसे PILL है और NGOs हैं, मैं इनको अपनी तरफ से जितना होता है मैं इनको डोनेट करता हूं, ताकि जो लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से, तो उनको ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Assalamu alaikum, Mr. Zaid, and assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Firstly, I would really like to appreciate you for your courage, for your resilience, for your self-motivation. I'm not able to appreciate you with the words, so I would say be an inspirational person for
for many people like us. So, um, well, like in our life, we do suffer with a lot of things. We do face a lot of challenges. So, what we should be looking uh, at the people like you who may be suffering with different things, but the severity and but the complications and but the struggles are much more than us. So I would appreciate you um, for everything you have been doing. So stay blessed. Thank you. Thank you for your kind words, Muhammad Hamza. Thank you. And I would like to stay connected with you. So if you would not Sure. be having any issues, so you can drop your contact number, so I'll get in contact. Okay, okay, sure. Thank you so much for your time. What a beautiful and moving episode today. Thank you so much for your incredible vulnerability, strength, and courage in sharing your journey with us. Your each and every word, they have touched our hearts today. It has broken a lot of stigmas and opened minds. We are so honored and proud to witness and to be part of your journey today. Before we end the session, I just want to say that it's okay to talk about these things. I know it takes a lot of courage, and I think Mohammad Zai Salim has given us example today that the more we talk about these things, the more we move towards healing, the more we move towards getting better. And I think we are going to end the session as well. If anyone would like to say something to वो कह दे, but if you have any questions, I would say कि आप वो WhatsApp पे ही पूछिए, please. Thank you so much once Afra, again. Afram, I just wanted to say one thing. जी Afra, जी. Shakir Manzoor here. मैं just एक तो मैं I really appreciate a very encouraging or I mean lived experience. I myself अगर मैं अपनी बात करूं मैंने पहले जैसे जिक्र किया I'm a lived person with type 2 diabetes. I'm dealing with people living with type 1 diabetes जिनकी हम advocacy की बात करते हैं. We provide them a platform कि वो आए अपनी लाइफ एग्जांपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करें. तो मैं यही सोचता था कि शायद हमारे पाकिस्तान में हम हमारी कम्युनिटी जो डिफरेंट कह लें कि लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ जी रही है किसी भी डिजीज के साथ या किसी भी चैलेंज के साथ, तो वो क्यों नहीं आगे आते सामने. तो आई थिंक जिस तरह से ये आज प्रेजेंटेशन सुनी, आई एम रियली आई मीन हैप्पी कि इस तरह के क्रेजियस हमारी कम्युनिटी में लोग हैं जो अपने साथ के दूसरे जो दोस्त हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता हूँ. आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम हिज साइड. और जिस तरह से बाकी कुलीग्स की तरफ से इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिली, आई थिंक ही मस्ट बी फीलिंग गुड टुडे. थैंक यू. Thank you so much for your kind words. And I think that's the whole purpose of it. कि instead of कि हम मोहम्मद जई सलीम से questions पे questions पूछते रहे, I think it's better that we appreciate what he has done today. And it takes a lot of strength, like I said. So we are going to appreciate you, and we are actually honored. I think जो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, we all, on behalf of each participant, I would like to thank you, and we all feel grateful कि आपने हम पे trust किया, and you trusted and you came out today and you talked about it so openly. Thank you so much once again. Thank you, ma'am, for your kind words, and Sir Shakir. Thank you. Ms. Sumbal, do you want to say something? Yes, am I audible? Gigi, please go ahead. Okay, first of all, I would like to appreciate Mr. Zaid for sharing it and being vulnerable. Thank you so much. Yes, I have seen a patient with schizophrenia when I was in my medical school in 2019. Basically, it was a COVID time, which was so many people had faced mental health issues at that time. So one of my class fellow, she was diagnosed with schizophrenia. She would send voice messages to the to our group. We had a obviously at that time we were taking the online classes, so we had a WhatsApp group, and she would send voice messages.
that were so weird. All of us were concerned about her, that what is happening. Then later on we discovered that she has been suffering from schizophrenia. But I have never seen a real life DID patient, so I am far more thankful to Apla for bringing this opportunity. And thank you so much, Zaid, also for sharing everything with us and sharing his experience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, I ma'am, think we're just for going. your comments. I think we're just going to end the session now, and I'm going to open the WhatsApp group chat to वहाँ पे if anyone wants to say something, ask questions. I think he'll be happy to cater that. Thank you once again, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.